Most people are obsessed about tire pressure, but almost nobody talks about tire temperature. So today I will talk about what is tire temperature, what is the optimal range for tire temperature, and how you can manage tire temperature without having any kind of fancy equipment. So let's get started. Tire temperature is simply the heat generated by the rubber of your tires due to friction with the road, load, speed and the air pressure inside the tires. जब आपका vehicle roll करता है, at that point of time when the rubber comes in contact with tarmac, that's where the friction generates heat. और जो rolling resistance है, वो जितना force आप लगाते हो to overcome the rolling resistance, that's where friction is generated and heat is generated as a byproduct. तो ऐसे आपके व्हीकल का टायर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, और ये जो रेट ऑफ डिफरेंशिएशन है, इट डिसाइड्स हाउ योर ग्रिप लेवल्स विल बी, हाउ द वेयर रेट विल बी, और आपके व्हीकल का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्या होगा, टायर का लाइफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. बहुत सारे लोग मे बी ये सोचते होंगे जब आपका व्हीकल रोड पे चलता है द टायर गेट्स हीटेड अप just because of the sunlight, which is actually a myth. Sunlight does not contribute directly to the increase in the temperature of your tires. Sunlight एक फैक्टर हो सकता है जो आपके सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करे, और आपका सराउंडिंग टेम्परेचर जब हाई हो और तब जब आप व्हीकल को ड्राइव करें, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टायर फ्लेक्सेस, और जब आपका टायर फ्लेक्स करता है द रबर इन द टायर दैट जनरेट्स हीट, और ये बेसिक फिजिक्स है. So it is the rubber and not the external temperature that generates heat in your tire. Now this heat is actually deciding how your grip levels will be on a road. When we speak about road cars जो हम daily drive करते हैं, इन कार का अगर आप टायर टेम्परेचर जो ऑप्टिमल टायर टेम्परेचर है जिसमें आपको मैक्सिमम ग्रिप मिलेगा, और उसके ऊपर जब एक टेम्परेचर रेंज, इफ़ यू सी ए ग्राफ, एक ऑप्टिमल लेवल पे जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा, दैट इज़ द पॉइंट वेर यू गेट द बेस्ट ग्रिप एंड द बेस्ट पॉसिबल लाइफ ऑफ द टायर. बट व्हेन यू सरपास दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, उस समय क्या होता है, द टायर गेट्स ओवरहीटेड, और जैसे ही आपका टायर ओवरहीट होता है यू फील द टायर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीजी रबर ऑन द रोड, और you will lose the grip. Overheated tires are not good. The rate of wear increases, the level of grip decreases, tire flexing is even more when the tire temperature increases or it overheats. So the optimal level of tire temperature for our road cars is something between 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Anything below 30 is a colder tire, and anything above 60 is a much overheated tire. तो इन दोनों केस में अगर if this is the lower side and this is the higher side, in both the cases the issue will be on the higher side. The rubber will be much more softer and it will overheat. The rate of tire degradation increases, and the most important thing is you will lose grip, and when tire overheats it increases pressure, और वही प्रेशर जब एक एक्सेसिव लेवल में इंक्रीज हो जाएगा देन इट लीड्स टू टायर ब्रस्ट, जो आप बहुत सारे हमारे एक्सप्रेसवेज में देखे होंगे. एंड दिस इज द सोल रीज़न दैट वी सी सो मेनी टायर ब्रस्ट एंड एक्सीडेंट्स in our expressways. And when we talk about colder tires, anything below 30 degree is the colder tires, and colder tires they lose the grip. Second चीज़, इसमें भी आपका wear out ज़्यादा होगा. The steering feedback will be very bad. I will not say they will burst, but the main thing is your braking performance decreases. तो ये सारे आपके cons है when you have a cold tire. आप बहुत बार ये notice किए होंगे, जैसे ही आप दिन का पहला क्रैंक करते हैं आपके मोटर को and you start driving, you will see the feel and feedback of the vehicle is very ad hoc. वो आपको predictable नहीं लगेगा. That is just because not the road is cold, it's simply because the tire, the rubber is cold. Now you need to bring it to a temperature so that they can perform at their best level.
So now, what is this optimal temperature window? The window of let's say 35 degrees Celsius to 55 or 60 degrees Celsius. In between this window, आपके सारे टायर्स इसमें आ जाएंगे, including the performance one that is available for our road cars. I'm not talking about the sports car tires. वो मे बी above 60 वो जा सकते हैं, but the cars that we use on a regular basis, they have this window from 35 to 60. अब ये जो विंडो है, द टायर परफॉर्म्स एट देयर बेस्ट लेवल. क्यों? तो आपको क्या करना है, व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग इन द मॉर्निंग, ड्राइव स्लोली फॉर फ्यू किलोमीटर्स बिकॉज योर टायर्स आर कोल्ड, एंड व्हेन योर टायर्स आर कोल्ड यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रेक हार्डर और टू जनरेट ग्रेटर ब्रेकिंग फोर्सेस. आपको डिसेलरेशन उस रेट में नहीं मिलेगा जितना आपको एक वार्म टायर आपको दे सकता है. अ कोल्ड टायर इज नॉट गुड, अ हॉट टायर इज ऑल्सो नॉट गुड. सो द बेस्ट suitable spot is actually a warm tire. When your tires are warm, that is the place where you can push your vehicle, and that is the thing where you can test all the limits of the vehicle. Both cold and hot tires are not suitable for driving, but the best condition that you can have is your warm tires. So how you warm up your tires? You just simply drive your vehicle for a few kilometers, let the tire temperature come into the minimum threshold of above 30 degrees Celsius. अब इसमें और एक चीज आपको ध्यान देनी है. When the tire temperature is below 30 degree, city driving condition, the traffic is from bumper to bumper. तो वैसे केसेस में you have like regular आपको क्लच और ब्रेक ऑपरेट करना होता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, योर इंजन, आपका इंजन एक तो उसमें बहुत लो स्पीड में चलता है. सेकेंड चीज़, यू हार्डली ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 50, 60 और 70 किलोमीटर पर आवर. इतना स्पीड आप अचीव नहीं कर पाते हो इन अ सिटी ट्रैफिक. तो जब आप एक लो स्पीड में चलते हो, योर टायर टेम्परेचर नेवर गेट अप टू 30 और एनीथिंग अबव 30 डिग्री सेल्सियस. तो उस केसेस में योर टायर टेम्परेचर्स आर स्टिल कोल्ड, एंड व्हेन यू नीड टू ब्रेक हार्डर इन एन इमरजेंसी इन अ सिटी कंडीशन, उस समय आपका व्हीकल प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बहुत सारे रियर एंड कोलिजन्स होते हैं. आप देखे होंगे सिटी ड्राइविंग ट्रैफिक्स में ये बहुत कॉमन होते हैं. सो फॉर दैट रीज़न जब आप सिटी ड्राइव करते हो और आप इमीडिएटली लाइक इन द मॉर्निंग, अगर आप अभी ऑफिस जा रहे हो और इमीडिएटली आप अपने व्हीकल को वार्म अप कर लिए, नाउ यू आर ड्राइविंग. जब आप ड्राइव कर रहे हो, देन मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ डिस्टेंस, एटलीस्ट 2 कार डिस्टेंस आप लेके चले आपके आगे, सो दैट यू विल हैव एनफ रूम टू रिएक्ट फास्टर एंड ब्रेक हार्डर इन केस देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू डू अ पैनिक ब्रेकिंग और इमरजेंसी ब्रेकिंग. तो ये जो आपका विंडो है 35 डिग्री टू 55 डिग्री, दिस विंडो इज बेस्ट फॉर द लोएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम ग्रिप एंड मिनिमम टायर डिग्रेडेशन. और इसी टेम्परेचर में मैन्युफैक्चरर्स टायर्स को डिज़ाइन करते हैं सो दैट दे कैन ऑपरेट एट देयर ऑप्टिमल लेवल. अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा गिमिकी लग रहे हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वी जस्ट सिंपली ड्राइव आउट ऑफ आवर गैराज और हम कंटिन्यू कर जाते हैं एंड नथिंग हैपन्स, तो आप कभी ये चीज़ थोड़ा सा चेक करना. जैसे ही आप मॉर्निंग स्टार्ट करते हो व्हीकल को, एंड ट्राई टू ब्रेक इट, एंड इफ़ यू आर अ वेरी स्पिरिटेड ड्राइवर, then you can immediately notice the difference when you break a cold tire and when you break a warm tire. दोनों में hell and heaven difference होता है. So that's the reason when मैं generally क्या करता हूँ, जैसे घर से मैं निकला and I have covered almost like 5 to 10 kilometers, जब तक मैं cover कर नहीं लेता I don't feel well, क्योंकि brain, body, mind ये सारी चीज़ें वेल सिंक नहीं होते हैं एज पर द ड्राइविंग कंडीशंस. तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है उस सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके, सो दैट वी कैन रिएक्ट फास्ट. आपके व्हीकल वार्म अप हो जाएगा, आपके टायर्स वार्म अप हो जाएंगे, एंड दैट्स द बेस्ट कंडीशन दैट यू कैन हैव. और वैसे कंडीशन में फिर मैन मशीन कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल एंड यू डू वंडर्स. सो द बेस्ट कंडीशन वेर यू कैन गेट योर टायर टेम्परेचर्स अप टू ऑप्टिमल लेवल is the highway driving. When you drive on a highway, आपको बहुत रूम मिलता है टू वार्म अप योर टायर्स, और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आप गेन कर लिया टायर में, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है,
हाईवे ड्राइविंग जब कंटिन्यूसली आप करते हो, देन द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द टायर्स रिमेन्स कांस्टेंट और वो मेंटेन होकर रहता है, प्रोवाइडेड you have set your tire pressure as per the recommendation of the manufacturer. तो इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप टायर प्रेशर चेक करो तो आप हमेशा कोल्ड टायर प्रेशर सेट करें। ऐसे नहीं कि आप एक लॉन्ग ड्राइव कर लिए एंड देन यू आर डूइंग प्रेशर टेस्ट। नो, जब भी आप घर से निकले, try to check your tire pressures when your tires are cold. That's the reason I'm using this term, cold tire pressure. That's very important because अगर आप एक warm टायर में टायर प्रेशर चेक करोगे या फिर एक overheated टायर में टायर प्रेशर चेक करोगे, because this is basic physics. Once the temperature goes up in an enclosed area, the pressure rises. So for that reason, always check your tire temperatures when the rubber is cold. And possibly टायर प्रेशर वर्सेस टायर टेम्परेचर, ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टायर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू टायर टेम्परेचर। जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, द टायर प्रेशर इंक्रीजेस, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी एक एनक्लोज सरफेस में अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, देन योर टायर प्रेशर विल डेफिनेटली इंक्रीज। दैट्स द रीज़न समर में वी सी सो मेनी टायर ब्रस्ट्स एज वेल एज वी सी so many tires having a very high pressure. और जब आपका टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, you will have a very bumpy feel. At the same time, you will lose grip. टायर प्रेशर plays a very vital role while providing grip. अगर आपका टायर प्रेशर ज़्यादा है, then the grip levels are little less as compared to when your tire pressure is at optimal level. और जैसे ही आपका टायर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, again you will have grip in that case, but the grip will be more like it will provide more friction. The rolling resistance will be higher. So in that case, it's not suitable to drive for a long distance. Though कुछ scenarios ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको टायर प्रेशर ड्रॉप करना होता है, just because to expand your surface area, the contact patch उसमें expand हो जाता है, so that you can recover your vehicle like in sand condition, in mud, rock terrain. तो ये सारे situations में आपका टायर प्रेशर plays a very vital role. So now let's discuss how to maintain this tire temperature. तो the first point is, जैसे ही आप टायर ऑप्टिमल टेम्परेचर गेन कर लिए, अब इस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है। डू नॉट ड्राइव एग्रेसिवली। जैसे कि आप एग्रेसिवली ड्राइव करते हो और स्पिरिटेड ड्राइव, यू पुट द थ्रॉटल वेरी हार्ड, देन यू ब्रेक अगेन, थ्रॉटल इनपुट, ये सारी चीज़ें एब्रप्टली जब होता है, इट रेजेस योर ब्रेक टेम्परेचर, इट रेजेस योर रोटर टेम्परेचर, एंड इट ऑल्सो रेजेस योर रबर टेम्परेचर, which gradually increases your tire temperature. ये सारे factors मिलके आपके tire temperature increase करते हैं. So for that reason, drive in a linear and gradual manner, because we are driving on roads, we are not driving on a track. If you want to drive on a track, there are dedicated tracks for that. So you can experience it there instead of trying to do such kind of stunt on a road. If you overload your vehicle, then again the tire temperatures will rise, because the tire is actually tested under a certain kind of load, and when you exceed that particular limit, तो again आपका टायर टेम्परेचर उसमें राइज करेगा. और ये जितना मैं आपको टायर टेम्परेचर बता रहा हूँ, एक्चुअली यू कैनॉट physically monitor it, but at the same time there are third-party applications and apparatus available in the market which you can use to monitor your tire pressures as well as your tire temperatures. And I personally use this particular device, जिसमें आपको टायर प्रेशर भी मिल जाता है और टायर टेम्परेचर भी मिल जाता है. मेरे दो व्हीकल में ये इंस्टॉल्ड है. तो एक में ये इंटरनल TPMS है, दिस इज एक्चुअली TPMS. एक इंटरनल TPMS है जिसमें आपको टायर टेम्परेचर एंड टायर प्रेशर दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, और एक एक्सटर्नल TPMS है जो जेनरिक आप उसके वाल्व में इसको इंस्टॉल करोगे एंड इट विल शो द रीडिंग. ये काफ़ी इजी टू यूज़ है और एंड देयर इज़ नो हैजल्स ऑफ इंस्टॉलिंग इट. तो जस्ट DIY आप ऑर्डर कर सकते हो ये चीज़, एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और एंड यू कैन सिंपली जस्ट स्क्रू इट टू योर टायर वाल्व. सो द बेसिक्स आर क्लियर नाउ. सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज, cold tires not good, overheated tires is also not good,
but warm tire is the best tire. And the temperatures that you need to keep in your mind is 30 degree to 60 degree. Anything beyond this level is actually not good. This kind of TPMS, which provides you the air pressure as well as the tire temperature, and I constantly monitor the temperatures and I regulate my driving style as per the temperatures. अगर मैं समर में ड्राइव कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा उसमें राइज कर जाएगा. So for that reason, when the temperature rises, I try to cool down the vehicle or possibly I will take a break in that case. तो ऐसे आप टायर टेम्परेचर्स को मॉनिटर कर सकते हैं. और आई होप दिस वीडियो इज़ इंसाइटफुल. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then do consider liking the video and subscribing the channel. Thank you and thanks for watching.